And we can start with the panel discussion. The topic for today's panel discussion is role of Muslim women in community and business. And the respected, esteemed panelists are Uzma Naid Baji. May I request you to please come on stage? Farah Diba, you're welcome on stage. Architect Nafisa, may I have you also on stage, please? And Dr. Mrs. Patel, a warm welcome to you on the stage. Ladies and gentlemen, please a round of applause for these women achievers here. Thank you. I would like to begin with you, Architect Nafisa. Can I have a brief introduction of you? Assalamu alaikum, all brothers and sisters present here. As she said, I'm an architect. My name is Nafisa Qazi. I'm from Pune. I passed out 13 years back in 2003. I got married and I had kids, and then in another 2008 December I started my own practice, and Alhamdulillah it's a very short span for an architect to be or whatever, to have her own firm and then to back government projects. But Alhamdulillah we've had a huge support. That was because we knew that we can do it. At least I knew that I can do it. And within 1 year's span, I backed the first government project, which is a pilot project in Maharashtra. I have been recognized by the Chief Minister, and I have been recognized by many different organizations for that project. That's known as a traffic park project, which was a very new concept altogether. And the best part was that when I presented, I had no clue where I am presenting, because the government body had people who were 20-25 years senior. The commissioner, the divisional commissioner, the CEOs of various bodies, and it was a body of 13 people of the DA meeting. And all I knew is that whatever I'm talking is all something out of the box, and I knew that I deserve it. So that was it. I had no experience. It was just 1 year of practice. But when I finished my presentation, Alhamdulillah, not just that I got the project, but also that every member present there invited me for their own independent state, city, whatever, for doing a project for them. So it's not, we being Muslims, first of all, we create a prejudice for our own selves. Others do not have any prejudice. It's unless we open our mouth, we ourselves don't realize what we are all about. So I believe that you have, every one of you, somebody over here was saying about talent and the ones who don't have talent. Everyone is talented. Allah subhanahu wa ta'ala has created us with immense talent. It's just that we haven't identified it for ourselves. Thank you so much. That was a very elaborate introduction. Thank you so much for that. Yeah, Farah Diba, can we have your introduction, please? Assalamu alaikum. I am Farah Diba. I am from Kanpur. I came to India in 1998. 4 years of schooling. I was made the head girl. Then after completing my education, my graduation, I was made the headmistress of a school, which was run for school for Muslim minority. Actually, those people are supported by rich Muslims of the same community. So right now I'm doing that only. The day I got a call from Mr. Malik, we were talking, and I said that I want to do something for Muslims. I don't know what to do, and I don't know how to do, but I do want to do something for them. Thank you so much. उस्मा बाजी, आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए. मैंने 1994 में एक मशरूत निकाहनामा तैयार किया था, और उसका मकसद ये था कि ख़वातीन जो हैं वो उनके साथ जो भी सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है सोसाइटी में, इस्लाम तो उसकी इजाज़त नहीं देता, इस्लाम ने तो राइट्स ही दिए हैं, लेकिन हमने वो 6 महीने की बहुत मेहनत के बाद वो तैयार किया. फिर तारीख़ में एक पहला वाक़या हुआ था कि हमने हिंदुस्तान के सारे टॉप के उलमा जो हैं उन्हें बुलाया था, इनवाइट किया बॉम्बे में,
और ये एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक तरफ उलमा थे, एक तरफ हम ख़वातीन थे, और ख़वातीन में रिसर्चर्स भी थी, एडवोकेट्स भी थे, और हमने ख़वातीन के एक इशू पे उनसे बात की थी और हमने कहा था कि ये जो मसाइल हैं इनका इस्लामी दायरा कार में ही हल निकालना है। तो अच्छी बात यह कि उनको बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की कि शायद ये बड़ा कोई एडवांस स्टेप है या कुछ है, लेकिन वो रुके नहीं, वो आए और सुना। और बहरहाल ये बहुत एक लंबी तफसील है, लेकिन ये हमने पर्सनल लॉ बोर्ड को प्रेजेंट किया निकाहनामा कि औरतें जो हैं निकाह से पहले अपनी शराइत रख लें और उसमें मर्द के भी जो हुकूक़ हैं वो भी महफूज रहते हैं और औरत के भी, वो सब हमने मेंशन किए। 36 पॉइंट्स थे उसमें। Is it possible to do that? हाँ, ये निकाहनामा जो है ये जब हमने बोर्ड को भेजा तो बोर्ड ने मौलाना मुजाहिद इस्लाम कासमी साहब उस वक्त बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हिंदुस्तान के 300 उलमा और मुफ्तियों को भेजा और उस पर जो उनकी राय आई वो बड़ी वंडरफुल राय थी। मेरे ख्याल से 400 साल में पहली बार ये काम हुआ। उलमा ने इतने अच्छे उस पर ओपिनियन दिए और फिर वो चलता रहा और 2005 में वो निकाहनामा पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिलीज़ किया, थोड़ी बहुत चेंजेस के बाद। लेकिन ये 400 साल में एक पहला अचीवमेंट है कि जो औरतों की तरफ से डिमांड हुई और उलमा ने भी साथ दिया और हमने उनसे यही कहा कि हम सिर्फ प्रोपोज कर रहे हैं कि एक हल ये है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई हल है तो आप बाइख्तियार हैं और आप ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन आप करेंगे तो अवाम पूरी एक्सेप्ट करेगी उसको। आप वाकई में एक बहुत दिलचस्प मौजू या बात मैं कहूँ सामने ले आई हैं। I didn't know about this seriously. Mrs. Patel, can we have your introduction, Doctor? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवाना पटेल है और शादी से पहले रिजवाना शेख था। मैंने अपना आयुर्वेदिक में ग्रेजुएशन किया है और पंचकर्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। फिर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस मैंने शुरू की 1994 इस साल में। जैसे कि हमारे यहाँ औरतों का होता है कि शादी के बाद बच्चे हैं, घर है, प्रैक्टिस को हर वक्त देती रही, लेकिन I have not given as much time as I would have liked to, because I feel that family is first priority for a woman and they cannot sacrifice because we are taking away their time. So I have continued my practice. In the meanwhile, I started my own small scale industry of herbal products. This was about 8 years back. I have registered with the government and the name is Hibroots Herbals. I manufacture hair oils, hair washes, face packs and face scrubs. I have not been able to expand my industry because of the limited time, because business needs a lot of marketing and also you have to move around a lot to sell your products. So my products have mainly gone to my patients. तो हर वक्त कोशिश की है कि it should be more than what is expected. Even the quality भी उस चीज़ की, अगर हमें कभी कभी आयुर्वेदिक दवाइयों में ऐसे होता है कि कोई इंग्रेडिएंट मिलता नहीं है तो मैं उसको फिर रिप्लेस नहीं करती हूँ, मैं रुकती हूँ टिल आई गेट दैट इंग्रेडिएंट और फिर ही मैं अपना प्रोडक्ट बनाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सोच है माशाल्लाह आपकी। So as you know, the topic is role of women in community and business. I'm going to shoot a question now. How do you view Muslim women in current business corporate world compared to the golden era of Islam? If you see initially, जैसे हज़रत खुदैजा का बताया है कि वो बिजनेस वुमेन थी, फिर बीच में एक ऐसा दौर आया कि औरतें बिजनेस में इतना हिस्सा नहीं लेने लगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि औरतें इल्म भी हासिल कर रही है और उस इल्म के साथ साथ उनका एक्सपोजर जो है दूसरे लोगों से भी हो रहा है, क्योंकि वो पहले हिजाब नहीं था तो वो बाहर इतना आना जाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो इतना एक्सपोजर होने की वजह से हम दूसरे बिजनेसेस को एम्यूलेट कर सकते हैं। जैसे कोई सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, वो जो बिज़नेस कर रही है, या अक्सर ये देखा जाता है कि हमने उस चीज़ का बिज़नेस करना चाहिए जो हमारा पैशन है, क्योंकि लाइफ में हम अगर जो कर रहे हैं उसमें हम अगर खुश है तो वो चीज़ हम अच्छे से करेंगे। जैसे किसी ने कहा कि अगर पूरा बहुत सारा पैसा है तुम्हारे पास तो तुम क्या यही करते होगे जो तुम आज कर रहे हो? अगर जवाब है कि हाँ, दुनिया का सारा पैसा भी मेरे पास हो और मैं यही काम करती हूँ जो मैं आज कर रही हूँ, मीन्स यू आर इन द राइट बिजनेस। तो इसी तरह औरतों ने एक एंथुजियाज़म और एक लेसन दूसरे रोल मॉडल से या बिजनेस वुमेन से लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों ने
इस्लाम के दायरे में रहते हुए इस फील्ड में एंटर करना चाहिए. Amazing. I like the viewpoint. So, how many of you among the audience agree with her viewpoint? Raise your hand, please. Wow. We are at the Vasai Industrial Expo 2016, the first of its kind at the Vasai Virar belt. एक्सिकॉन ने जो एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज किया है टू सपोर्ट द इंडस्ट्री हियर, लेट अस गिव हिम अ बिग थैंक. रोजगार निर्माण करायला वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज वेगवेगळ्या सेक्टर्सला आपण प्रमोट करत असतो. ती माहिती जास्तीत जास्त इंडस्ट्रीज पर्यंत कशी पोहोचेल त्यांना मी धन्यवाद देतो की अशा प्रकारचा पहिला एक्सपो आमच्याकडे एसी पेंडॉलमध्ये लावला. वसई इंडस्ट्रीयल एक्सपो 2016 याचं या ठिकाणी उद्घाटन करताना मला मनापासून आनंद होत आहे. We are basically storage solutions providers. We are into everything as far as weighing is concerned. I think it's the first time in Vasai belt and people are all excited about it. Vasai is supposed to be one of the biggest industrial cluster. Vasai is where all the industries are located. It's planned very well. I am really happy about what things have come up. ऐसा हर 6 महीने के बाद यहाँ पर होना चाहिए ये सब. In such a short time, organizing such a good event, I can say that hats off to them. Hi guys, welcome to Trade Fair TV. Today I've got something interesting for you. The autocar performance from the PKC. We are at the Bombay Convention Exhibition Center in Mumbai, bringing to you the Maritime India Summit 2016. The biggest show India has ever seen on the marine industry is right here. The show has been inaugurated by the Prime Minister of the country. To enable the growth of the port and related sectors, we have carried out several reforms and taken a number of new initiatives. This is Maritime India Summit. It is happening for the first time in India that we are holding such an event. Focusing on the Indian shipping, and this is the good opportunity for me to learn something new. It's a great chance for us to visit India and have a many business chances. Solar boat is 100% powered by solar. Zero emission, zero fuel. Dredging and marine construction. The new government is making moves to improve that.
All the three simulators are made in India. The maritime sector is a proud heritage for India. We are here not only as a maritime sector but as an entire integrated player in the maritime sector. The maritime industry is an industry for the next 2 decades. It's got no stopping. उज़मा बाजी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने काम के बारे में बताने में बहुत जोश होता है और जो काम हमने किया होता है उसकी हम अच्छी पिक्चर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक प्रैक्टिकलिटी का ताल्लुक़ है, मैं बिल्कुल किसी ख्वाब ख्याल में नहीं हूँ कि मुस्लिम औरतें जो हैं वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। मुस्लिम औरतें तो अभी बड़ी कंफ्यूज हैं कि वो घर से भी निकलें या ना निकलें, और उनके लिए घर में बैठना ज़्यादा अफजल है या बाहर जाना। इस वक्त हमारे सामने जो मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि हम मदरसे जाते हैं, मदरसों में बुलाया जाता है, तो बच्चियां जो हैं वो कभी कभी आर्किटेक्ट बन गई हैं, इंजीनियर बन गई हैं, लेकिन उनके सामने जो बहुत बड़ा मसला है कि पर्दा, वो ख़ुद कितना समझती हैं पर्दे को, वो एक अलग मैटर है, वो कुछ समझा ही नहीं है उन्होंने। मगर एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस किस्म का पर्दा हो कि वो जॉब में और उनकी जो हायर एजुकेशन में उसमें हायल ना हो। हिंदुस्तान में ये हर शहर में शायद ये मिसाल मिलेगी आपको कि वहाँ कोई कॉलेज होगा और वहाँ सिर्फ एक वो हिजाब क्लैड वुमन होगी जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, जो बिल्कुल अलग थलग खड़ी है, ना वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, ना कुछ कर रही है। वेरी ट्रू। तो ये चीज़ें एक तो वो हैं। दूसरा, मैं एक मर्दों की साइकोलॉजी में बात करूँगी कि औरतों की फ़िक्री आज़ादी जब तक मुमकिन नहीं है जब तक मर्द आज़ाद ना हो फ़िक्री तौर पर। वो कैसे कि वो इसको लिबर्टी दे और औरत को उन तहफ़्फ़ुज़ात की जो एक दायरे बना रखे हैं लोगों ने कि औरत की हिफाजत। तो अब PhD और आर्किटेक्ट और डॉक्टर्स और इंजीनियर जो हैं उनको किसी मर्द की ज़रूरत है क्या कि वो उसको प्रोटेक्ट करें। तीसरी चीज़ जो है वो ये कि इस वक्त जो हम प्रोटेक्शन की मद में बात करते हैं, सारा इस्लाम को प्रेजेंटेशन ही प्रोटेक्शन की मद में कर रहे हैं। जैसे हम सहराओं में रह रहे हैं, उस चीज़ से निकलना चाहिए बाहर। बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें महरम का मसला है कि सफ़र करे तो वो किस महरम के साथ करे। हर चीज़ का, जैसे कुरान की आयतें हैं उनके शान नुज़ूल पे जाइए, अहादीस हैं तो उनके बैकग्राउंड पे जाइए कि किस वक्त, किस मूड में, किस लहजे में, किस किस के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी। तब तक हम रियल उस पर नहीं जाते हैं। जिन चीज़ों के बारे में अभी यहाँ बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से स्टडी कर कर के वो निकल के आई हैं चीज़ें, मगर अभी बहुत दूर जाना है। तो उसमें एक बात जो है वो ये है कि जो कंपनीज़ हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ रही हैं, वो बहुत बड़े बड़े जॉब ऑफ़र कर रही हैं। तो आपको जितनी भी कंपनीज़ की मिलेंगी, CEO मिलेंगी या वहाँ पे काम करने वाली, उसमें मुसलमान बहुत रेयर होंगी। तो इसका मतलब है कि हमें बहुत लंबा सफ़र करना है। अभी तहफ़्फ़ुज़ की जो शर्त है वो औरत पे छोड़ दीजिए। औरत को अपनी क़ब्र में ख़ुद जाना है, अल्लाह को जवाब भी ख़ुद देना है। उसके बिहाफ पे ना कोई शौहर देगा, ना मर्द देगा, ना बाप देंगे। So how many of you agree with Uzma Baji's viewpoint? सब उठा दीजिए हाथ, प्लीज सब उठा दीजिए। That will be very encouraging to us. ये प्रैक्टिकल बात कराए। मैं एक औरत हूँ, मैंने दुनिया के तकरीबन 5 मुल्कों में, जिसमें जापान है, मियामी है, अमेरिका, लंदन, यहाँ पे उलमा ने बाकायदा इधर उधर मसनतें बिछा के, इमाम हजरात मुझे बुला के बिठा लिया अकेले। सूरत में भी हुआ, 400 उलमा ने बुलाया और ये कहा कि आप बताइए हमें। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं कोई आलिमाना फाजिलाना बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली एक औरत की साइकोलॉजी पेश कर रही हूँ जो आप नहीं जानते, आप नहीं समझते। आप फैसले उसके लिए करते हैं। कोई मुफ्ती भी फतवा दे रहे हैं औरत के लिए, वो बिल्कुल धड़ल्ले से दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि वो खुद अपनी सोच भी रख रही है। इस ज़माने में ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, उसकी क्या परेशानियां हैं, किस किस्म की वो उससे निपट रही है, बच्चे भी देख रही, घर भी देख रही। तो मेरा ख्याल है कि एक पैकेज जो हम यहाँ सब बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर हमें फिर से रीथिंकिंग करने की ज़रूरत है कि हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ करते हैं, अपने घरों में रहते हैं। यहाँ की औरतें बड़ी साबिर हैं कि वो ज़िद नहीं करती हैं किसी बात पे, जो होता है उसको नसीब समझ लेती हैं अपना। लेकिन ये गलत तरीका है। अल्लाह ताला उस सब्र पे अजर नहीं देते जिसका उसने मुतालबा ही नहीं किया।
इस्लाम की हदबंदियाँ बस काफ़ी हैं, अपनी हदबंदियाँ न लगाएं। और दूसरी एक बात कहूँगी कि आज से इस प्रोग्राम से हम ये तय करके जाएं, मर्द हजरात ख़ास तौर से, कि सुबह में बस खाना पकवा लिया करें, शाम में मत पकवाया करें। सुबह शाम लगी पड़ी है 4-4 घंटे। अच्छा, कितने लोग इस पे अमल करेंगे? कितने मर्द इस पे अमल करेंगे? सब हाथ उठा दीजिए, सब हाथ उठा दीजिए आप। दो लोगों ने हाथ उठाए, इतने दलेर बहादुर लोग हैं। तंग दिल, आप लोग तंग दिल है, तंग दिल मत बैठे हैं यहाँ पे। ये आधी आबादी है हिंदुस्तान की जो वॉइसलेस, फेसलेस, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं। और हुकूमत ने, सच्चर कमेटी ने ये कहा है कि मुसलमान कौम जो है आदिवासी कौम के बाद चली गई है, और मुसलमान औरत जो है वो डेंजरस लाइन क्रॉस कर चुकी है। दिस इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन। मैं 25 साल से काम कर रही हूँ, उसके बाद ये थोड़ी बहुत मैंने लिबर्टी ली है बोलने के लिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत उज़मा बाजी, बहुत ही अच्छा ख्याल आपने सामने रखा लोगों के। सारा आप बोलें। मुझे लगता है कि ठीक है, एडुकेशन, यू एडुकेट योरसेल्फ, उसके बाद आप सोचते हैं कि हम जॉब लेंगे। वाई शुड यू वर्क अंडर समबडी? लाइक माई फादर, उनका खुद का होजरी का बिजनेस है, तो आई टोल्ड हिम वन डे, अब्बू की हमें बहुत करने का कुछ दिल चाहता है, अब्बू हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं। तो अब्बू सेड, व्हाई डोंट यू बिगिन विद मी, आई विल गिव यू द अकाउंट्स, यू मैनेज द अकाउंट्स। तो व्हाट आई थिंक इज गिव द डॉटर्स अ स्टार्ट एट होम इटसेल्फ। वेरी ट्रू। See, when you talk of comparing women in the time of, when the golden era, when the Islam was at its peak, I mean the initial years of Islam, so mashallah, that time women were, as mentioned, Hazrat Bibi Khadija radiallahu anhu, she was the best example of a very, very successful businesswoman. But not just that, women were still mothers, women were still wives, they were daughters, they were sisters, they were nurses, and they were warriors. MashaAllah, we had warriors in Islam who were the bravest of them, alhamdulillah, the Sahabas, and they were never behind. So the very fact that a woman, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen a woman to give birth, is that she can have that amount of patience and perseverance. So I think, in any case, even today, in her hijab, in her limitations of Islam, and in her belief, in her own faith, with faith in her own self, she can reach wherever she wants to. So alhamdulillah, it's just that the support from the community is needed. जितनी भी सहाबियात थीं, इनकी अगर तारीख़ पढ़ें आप तो अंदाज़ा होगा कि कोई ना कोई काम कर रही थी। वो टोपियाँ बन रही थी या टोकरियाँ बना रही थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो मिसाल देते हैं कि वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हो गया उसके बाद भी वो बिज़नेस कर रही थी। लेकिन ये अलग बात है कि मोमिना होने के बाद वो अपना सारा पैसा खैरात में दे देती माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो एक तो ये बात है। दूसरा एक मैं ये पॉइंट रेज़ करना चाहूँगी कि लड़कियों की शादी का बहुत बड़ा मसला ये है कि 15-16 साल की उम्र में आमतौर पर बाप ज़्यादा फ़िक्र रहते हैं कि बस जल्दी से कर दो, फिर पता नहीं क्या होगा, तो उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह जाती है। मतलब करियर प्लानिंग उन्हें करने ही नहीं देते हैं कि वो, या बिज़नेस भी जो है कोई हंसी खेल थोड़ी ही है, कोई एक दिन में थोड़ी हो जाते हैं। आपको तो मालूम है कि भाई थोड़ा वक्त लगता है। तो इस चीज़ का कैसे सॉल्यूशन हो, या तो ये कि उनको बचपन से इसकी ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आपको अपनी लाइफ में कोई मकसद हयात तय करना है। बेमकसद लाइफ जो है वो किसी इंसान की, क्या मोमिन की तो हो ही नहीं सकती, किसी इंसान की भी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ कि घरदारी, बच्चे पालना, सब उसको घर को सजाना बजाना, ये सारी चीज़ें ये उसकी ज़िम्मेदारी हो सकती है, फ़र्ज़ नहीं है। इस्लाम में फ़राइज़ में नहीं है बच्चे भी पालना, ना घर को देखना, ना खाना पकाना, फ़राइज़ में नहीं है। वो कर दे बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि खिदमत जो है, हमारी माँ की भी खिदमत वो करे, हमारी इसकी भी करे, तो वक्त कहाँ बचता है उसके पास इतना। सही कह रही हैं। तो इसमें जो है माँ बाप की खिदमत एहसन में आता है कि वो कर दे तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन ये इससे बहुत कुछ माशरा संभला हुआ भी है। मैं ये कहती हूँ कि बैन बिटवीन एक रास्ता निकालना चाहिए। शुक्रिया उज़मा बाजी। How do you support yourself and your family members to excel? Each one of you, short and sweet, please. I just like to share the schedule that I follow personally, because my field demands being out of the home most of the times, and being on site, and then being amongst men most of the times. But alhamdulillah, what I do is morning with my boys and with my children, I'm there till I send them to school.
and then I try and make my lunch later by 3:30 by the time they are back, so that I'm with them for the lunch too. My office is in the parking of my home, so it's on and on. I mean, I keep going, I keep checking, and then I bring them to my office when there are certain difficulties they're facing with their studies. And Alhamdulillah, I've try to manage work in a way that I work when my kids are busy with something else. I don't have much to say on the question because I was very much supported by my parents. The time I studied, I studied. The time I worked, like I'm in a job, I am doing a job. So what I could do was keeping myself in, like I made myself a role model, not a huge one, but a yes, very simple one for those people who were following me. I knew people are following me in my area, in my mohalla. So I tried to do as good I could as at studies and as well as a daughter. I would like to say is that I would like, she said, be a good role model. जैसे हम बच्चों को नमाज की ताकीद करते हैं, तो मेरे बच्चे ने मुझे खुद कहा कि मम्मी आप तो कभी वक्त पे नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल वक्त गुजर जाता है तब मैं देखता हूँ आप खड़े रहते हो. मैंने कहा सही है, हमको उनको बोलने से ज़्यादा उनको करके दिखाना है. उस दिन से मैंने कोशिश की कि अजान होने के करीब करीब नमाज के लिए खड़े हो जाऊँ. और दूसरी चीज़ ये मैंने देखा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है. तो मोटिवेट करने के लिए हमारे, अगर हम कुरान शरीफ भी खोलकर उनको एक एक आयत लेकर उस आयत के ट्रांसलेशन और तर्जुमे के ज़रिए और हदीस के ज़रिए हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर और सहाबियों ने किस तरह से उस तरह से उनको वो इंसिडेंट्स बता के और भी दूसरे लिटरेचर से या फिर अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलवा के बच्चों को जो मोटिवेशन मिलता है वो हम अपने आप से अकेले से नहीं कर सकते वो मोटिवेशन. Any advice to upcoming Muslim women entrepreneurs? Any advice, the main advice I would give anybody, whether it's entrepreneurship or any other field, but because Islam prefers entrepreneurship to job, because like I'll tell you a small thing, जब नौकरी करते हैं तो पेमेंट मिलती है, लेकिन entrepreneurship करते हैं तो नफ़ा मिलता है, और पेमेंट से नफ़ा बेहतर है क्योंकि पेमेंट फिक्स्ड होती है और नफ़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नफ़ा उतना होगा जितनी हम मेहनत करेंगे. Very true. तो हमारी रोज़ी हलाल हो जाएगी. Very true. इसमें हराम रोज़ी का बहुत, लेकिन तुम 9 से 5 नौकरी करने जा रहे हो और 4-5 घंटे चाय के काउंटर पे, कॉफ़ी के काउंटर पे, फ़ोन पे लगे हो, तो वो रोज़ी हलाल कैसे हुई? तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि अगर नौकरी भी करें बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जो रिस्क है, जो वक्त दे रहे हैं, उसकी पूरी, यू शुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड. Uzma Baji, any last words from you? Any advice to upcoming Muslim entrepreneurs? औरतों के लिए जो है वो तन्हा काम करना प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि ग्रुप फॉर्म में काम हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो अपने टाइमिंग एडजस्ट करती हैं. मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे मर्द हजरात की बड़ी तादाद है कि औरतें जो भी काम करें, मतलब प्रोडक्शन उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखें, लेकिन मार्केटिंग जो है उसके लिए मर्द आएँ. तो उसमें MBA जो हमारे यंग बच्चे निकल रहे हैं, अगर उनको इसके साथ अटैच कर दें तो इनका भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा. Mashallah, very beautiful viewpoint. Like I told earlier, I'm helping my Abbu with the accounts, but because I was invited here to speak on IMEN, so I came prepared for that only. Talk about women entrepreneurship, I would say mostly to the brothers over here that I am here because of my parents and my father especially. So I want you to be the fathers who create daughters who are independent entrepreneurs. And Alhamdulillah, with a platform like IMEN, I think it's really going to, it's looking like it's going to be possible in a very short span, inshallah. Thank you for engaging in this discussion, and hope after this the point is driven home. Thank you.